Om Prakash sir. Yes, please. Pranesh, put it on recording. Yes, sir, done. Yeah. Okay. So a very warm good morning to all the participants and our speaker, Dr. Om Prakash sir, Sujit Panigrahi sir. A very good morning to you all. So today we have a very eminent speaker, Dr. Om Prakash sir. So I would take it as my proud privilege to introduce Dr. Om Prakash sir. Sir is working as an assistant professor in Swarnim, Gujarat Sports University. Sir has completed his bachelor, master and PhD from Banaras Hindu University. Sir was also a member of cricket team of BHU in East June Inter-University tournament, which was held in 2007-8. Sir also worked in Kashi, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, and now he is working in a Swarnim Gujarat Sports University. Sir has attended many workshops, seminar like SPSS data analysis, yoga, training methods, discovering statistics by MS Excel, SPSS. Sir has attended a 7-day national workshop in global research orientation and its utility in physical education and sports. Sir has published and presented many national and international articles in reputed journals. So with all this, sir is also my senior. When I was there in BHU, sir is my senior. So I welcome you, sir. Now I hope you are going to break the lock of the mind of participants, and definitely I hope you will empower us in community officiating general principle. So I welcome you. The stage is yours. And also I welcome Sujit Panigrahi sir, because he is always there to support us and he has not missed any session. Throughout the day he's sitting and throughout the session. So I welcome you sir also. So so I welcome Dr. Om Prakash sir on behalf of Sports Authority of India, Lakshmi National College of Physical Education, Ministry of Youth Affairs and Sports, and Khelo India. Welcome you, sir. Now you can proceed with your session, sir. Thank you, Sanjay Prajapati. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you once again. Respected G. Kishore sir and all the governing committee of PE Community Coaching Program, Sai LNCP Trivandrum, Ministry of Youth Affairs and Sports, Khelo India. First of all, I want to express my sincere thanks for giving me this opportunity to express my views on community officiating and general principles. Thank you, sir. For participants, my presentation will be in 3 parts. First, I will explain the responsibility of officials during pre and post games. Then I will be explain the key factor for become a good official. My presentation will be in bilingual. मैं यहाँ पर 2 भागों में अपने प्रेजेंटेशन को डिवाइड करके एक्सप्लेन करूंगा. पहले पार्ट में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है जब आप गेम के पहले, गेम के दौरान और गेम के बाद गेम में ऑफिशिएटिंग करने जाते हैं. You all know that physical education teacher has to play a very vital role in their school. फिजिकल एजुकेशन टीचरों को एक बहुत बड़े काम के साथ स्कूल में करना पड़ता है. They have to act as a teacher, they have to act as a mentor, they have to act as a official, sometimes they have to act as a organizer. They have to play a different role for different situation. Out of these, the most important role is officiating. A physical education teacher must have proper knowledge of officiating. फिजिकल एजुकेशन टीचर को ऑफिशिएटिंग से रिलेटेड जो की फैक्टर हैं उनको जानना बहुत ही आवश्यक है. दिस इज द की ऑफ टुडेज लेक्चर. ओके, मूविंग फर्दर, आई विल स्टार्ट विद दिस स्लाइड and the aim of this slide is to actually this is the slide and this slide shows that there is a 2 part. One part
so that the purpose of sports for many, सभी के लिए जो मेन पर्पस होता है स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन का, वो क्या है? विन करना, जीतना. बट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस विन इज, हैव यू गेन योर ऑब्जेक्टिव? क्या आपने जिस पर्पस से ये पार्टिसिपेशन किया था स्पोर्ट्स में, क्या वो पाया? और द की ऑफ टुडेज लेक्चर, understand what will be the different key of physical education teacher to achieve or to act as a good officer. Here I want to explain by showing a video. यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि 96 की है. क्वार्टर फाइनल मैच थी इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में. इस मैच को आप देखिए और इसके बाद से ऑफिसिएटिंग की पर हम चर्चा करेंगे. Space in this contest. It's not true of Antico Che at the moment. Certainly it's been true of the England team. You've seen that much of Hodge or Trevor Stephen. Maradona just walked away from Huddle then. Maradona. They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge. And Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee. But the little man who started it by walking past Glenn Hoddle, that's where the ball came from Hodge. Maradona had continued the run forward. And the goal is given. At what point was he offside? Or was it a use of the hand that England are complaining about? Okay. सो आपने ये देखा, ये मैच इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में, सॉरी इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच में फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल की मैच का एक क्लिप है. एक्चुअली दिस वीडियो हैज टू पार्ट. वन इज एज ए स्पोर्ट्समैन एंड वन इज एज ए ऑफिशियल. इसकी कंक्लूजन क्या है कि डियो मैराडोना जो थे वो मैच एकदम क्रूशियल कंडीशन में थी, हाफ बीत गई थी और उस कंडीशन में इनको एक ऐसी पोजीशन मिली जहां पे इनका जो गोल अपोनेंट का गोलकीपर था. सॉरी सर आप एक काम कर लीजिए, आप अपना वीडियो को ना ऑफ कर लीजिए. अपना वीडियो को थोड़ा सा आपका वॉइस जो है ना नीचे आ रहा है, तो आप अपना वीडियो को ऑफ कर लीजिए. वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में. वॉइस ब्रेक हो रही है, आप अपना वीडियो को ऑफ कर लीजिए. ये ठीक है, ये वाला ठीक चल रहा है. आप अपना वीडियो को ऑफ कर लीजिए, खुद का वीडियो को ऑफ कर लीजिए. नीचे जो है ना लेफ्ट नीचे जूम का जूम में एक म्यूट है और एक स्टार्ट वीडियो है. ये एक मिनट नीचे नीचे. ओके. यस सर, यस सर. थैंक यू. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द गेम सिचुएशन. ये एक गेम था क्वार्टर फाइनल का जिसमें डियो मैराडोना के पास एक ऐसी सिचुएशन आई जिसमें सामने का जो गोलकीपर था उनसे वो कुछ लंबा था और उन्होंने जंप किया और वो अनजाने में उनके हाथ से बॉल टच करके और गोल पोस्ट में चली गई. गोल पोस्ट में जाने के बाद वो उसको सेलिब्रेट करने लगे और इस सेलिब्रेशन को देख के जो ऑफिशियल थे वो कंफ्यूज हो गए. उस समय इतना टेक्निकल सपोर्ट नहीं था और उसको गोल करार दे दिया. जो फाइनल रिजल्ट था मैच का वो 2-1 था और अंतिम में अर्जेंटीना जीत गया. इसके बाद जब लोगों ने पूछा तो डियो मैराडोना ने कहा ऐसा कि कुछ तो गोल मेरी सर से हुआ और कुछ हैंड्स ऑफ गॉड की, भगवान के हाथों हुआ. ये उनका कंक्लूजन था. लेकिन बाय डिफॉल्ट उन्होंने पूरे मैच में 2 गोल मारे थे. एक गोल को गोल ऑफ द सेंचुरी बोला गया. द वन गोल, द सेकंड लास्ट गोल, द डिसाइडिंग गोल वाज कॉल्ड एज गोल ऑफ सेंचुरी एंड द फर्स्ट गोल वाज कॉल्ड एज हैंड ऑफ गॉड, गोल ऑफ हैंड ऑफ गॉड. इससे ये डिसाइड होता है कि अगर एक थोड़ी सी भी मिस डिसीजन, कोई गलत डिसीजन हो जाए तो उससे कितना बड़ा एक लॉस हो सकता है, इथिकल लॉस हो सकता है, मैच किसी के फेवर में जा सकता है. इसलिए ऑफिशिएटिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि ऑफिशियल को करना चाहिए. Okay, so you may see there is a 3 major point. One is why,
second is how, and third is who. Officiating, for officiating, these three key factors, why, how and who, is the main things. In who, we have to judge, we have to look the official who is going to officiate. It can be referee, it may be umpire और जज. उसको अलग अलग नामों से आप बोल सकते हैं कि ऑफिशिएटिंग करने वाला एक रेफरी हो सकता है, एक एम्पायर हो सकता है, एक जज हो सकता है. लेकिन वो होगा कैसा? वो एक न्यूट्रल पर्सन होगा जो दोनों लोगों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन कराएगा. द मैन who is responsible to give situation for healthy competition. हेल्दी कंपटीशन क्यों? क्योंकि कंपटीशन एक ऐसी जगह है जहां पर आपको compete करके एक दूसरे से अच्छा स्किल प्रेजेंट करना होता है और दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जिससे वो दिखा पाए कि किन की स्किल किससे अच्छी है. दिस इज द मेन थिंग व्हाई ऑफिशिएटिंग हैज टू बी डन, and this officiating has to be done on the basis of certain rules and regulation, and the official are the person who has supervised on the basis of these rules. एक ऑफिशियल ही वो पर्सन होता है जो certain rules and regulation के बेस पर किसी भी कंपटीशन को अपनी निगरानी में कंडक्ट कराता है. So this is the main factor of officiating. Okay, moving further, you may see on your screen there is a two part of screen. In right there is a quality of official, and in left there is a successful officiating. Key for successful officiating. जहां पर दो स्क्रीन के दो पार्ट हैं, एक पार्ट में क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल दिख रहा है, दूसरे पार्ट में सक्सेसफुल ऑफिशिएटिंग बनने के फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं. इन क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल उसमें सबसे पहला जो है कंसिस्टेंसी यहाँ पर इसलिए है कि जो जैसे भी आप ऑफिशिएटिंग कर रहे हैं उस ऑफिशिएटिंग का लेवल, उस ऑफिशिएटिंग की जजमेंट जो भी हो उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. देन द जजमेंट क्या है? जो जितने भी मैच होते हैं उसका रिजल्ट बेस्ड होता है ऑफिशियल के जजमेंट पर. वो जजमेंट इतना कंसिस्टेंट होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स होने चाहिए कि वो मैच को ठीक तरह से, सही तरीके से, स्मूथ तरीके से कंडक्ट कराए. ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पर इसलिए है कि एक ऑफिशियल के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्लियर होनी चाहिए कि उसको क्या करना है, कैसे जजमेंट लेनी है, किस जगह पे जजमेंट लेनी है, सिचुएशन को कैसे जज करना है. Then the self-confidence. Self-confidence play an important role while judging, while performing official duties. Self-concept ये आपको एक बेस देता है जिससे आप जजमेंट दे पाए. आपको ये पता हो कि जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूँ वो डिसीजन कितना अच्छा है. Then comes to the calmness. आप जब भी मैच सिचुएशन में जाते हैं तो दोनों टीम और स्पेक्टेटर सभी एक एग्रेसिव रूप में, एक ऑप्टिमम एग्रेशन उनके पास होती है जिससे वो मैच प्ले कर रहे होते हैं. लेकिन ऑफिशियल एक ऐसा पर्सन होता है वो उसको हमेशा काम एंड कूल होना चाहिए, सिचुएशन को समझना चाहिए, रूल्स को समझना चाहिए और उस हिसाब से सामंजस्य स्थापित करना चाहिए. देन कम्स टू द फेयरनेस का यहाँ पर मतलब है कि वो किसी की तरह बायस्ड न हो, उसका जजमेंट एकदम फेयर और सटीक होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लॉज एंड रूल्स ऑफ सर्टेन मैच सिचुएशन. देन we comes to the cooperation. We have to cooperate with our co-official. We have to cooperate with the organizing team. We have to cooperate with the players. We have to cooperate with the audience also. यहाँ पर cooperation एक ऐसी स्किल है जो ऑफिशियल के व्यक्तित्व को बहुत अच्छा कर देती है. हमको अलग अलग एक ही मैच टूर्नामेंट में अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से कॉपरेशन करना पड़ता है. हमको प्लेयर के साथ कॉपरेशन करना पड़ता है, हमको ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ कॉपरेशन करना पड़ता है, हमको ऑफिशियल्स के साथ कॉपरेशन करना पड़ता है और इस कॉपरेशन के साथ ही हम मैच को स्मूथ तरीके से चला सकते हैं. देन वी कम टू द प्रोफेशनलिज्म का यहाँ मतलब है कि अगर ऑफिशियल है उसको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है और वो ठीक तरीके से ऑफिशिएटिंग कर रहा है, अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, दैट इज कम्स अंडर प्रोफेशनलिज्म. इमोशनल इंटेलिजेंट. कई बार मैं आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा भी, कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें आपको इमोशनल, आपके पास इंटेलिजेंट होना चाहिए कि आप चीजों को समझ पाएं कि कैसी चीज है और ऐसा सिचुएशन कैसा है जिसमें आप ऑफिशिएटिंग अच्छे से कर पाए.
अपीयरेंस, आपकी अपीयरेंस ये बताएगी कि आप कैसे ऑफिशियल्स हो, इसलिए एक अच्छे ऑफिशियल्स के पास एक अच्छा अपीयरेंस होना चाहिए। देन वी कम टू द अटायर एंड पर्सनल इक्विपमेंट। अटायर एंड पर्सनल इक्विपमेंट में आपकी ड्रेस, आपके पर्सनल इक्विपमेंट रिलेटेड टू ऑफिसिटिंग आते हैं। एक अच्छे ऑफिशियल के पास उसका वेल ड्रेस, नीट एंड क्लीन ड्रेस और उससे रिलेटेड ऑफिसिटिंग से रिलेटेड उसके पर्सनल इक्विपमेंट होने की विशेष महत्व है। देन द पोज एंड एटीट्यूड। पोज एंड एटीट्यूड में ये है कि आपका एटीट्यूड को प्लेयर के साथ, आपका एटीट्यूड आपके अपने जजमेंट के साथ, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सभी चीज आपके एटीट्यूड में चली आती है कि आप कैसी टूर्नामेंट को, उस पर्टिकुलर कंपटीशन को कैसे हैंडल करेंगे। एंड द लास्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल इज ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड। सर्टिफाइड क्या है कि यहाँ अलग अलग लेवल पे अलग अलग गेम्स के लिए सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। हर एक ऑफिशियल को ये चाहिए कि टूर्नामेंट करने से पहले या फिजिकल एजुकेशन टीचर को ये चाहिए कि वो सर्टेन लेवल के सर्टिफिकेट कोर्स उस फेडरेशन के पास कर ले, जिससे वो सर्टिफाइड कोच हो पाए। सर्टिफिकेट कोच कोर्स क्वालिफाई करने का एक और भी अच्छा पर्पस होता है कि आप बीच बीच में उसके रूल्स एंड रेगुलेशन से दोस्ती आपकी होती रहेगी, जिससे आप रूल्स और रेगुलेशन को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। देन फॉर सक्सेसफुल ऑफिसिएटिंग के लिए आपको कुछ चीजों की ज्ञान होनी चाहिए जिससे आप अच्छी ऑफिसिएटिंग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है जो नॉलेज ऑफ द रूल। किसी भी गेम को सक्सेसफुल और अच्छे से कराने के लिए, स्मूथ कराने के लिए, रिदम में कराने के लिए उसके रूल का नॉलेज होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी गेम को सक्सेस करने के लिए उस रूल पे अगर आपके पास नॉलेज है तो उसका एग्जीक्यूशन पार्ट आपको अच्छा करेगा, हेल्प करेगा। सभी गेम के अपने अपने मैकेनिज्म होते हैं और ऑफिसिएटिंग करने के भी अपने मैकेनिज्म होते हैं, मैनुअल्स होते हैं, तो हमें उसका भी ज्ञान होना चाहिए कि हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू डू, हाउ टू फील, हाउ टू बिहेव विद द अदर प्री, ड्यूरिंग एंड आफ्टर गेम। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फिजिकल फिटनेस एंड पोस्चर। आपने देखा होगा यहाँ पे अलग अलग गेम में, अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग तरीके की ऑफिसिएटिंग रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट में एक जगह पर आपको 3 घंटे खड़े होने हैं अगर आप वनडे कर रहे हैं। अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तभी भी आपको लंबे समय तक क्रिकेट में खड़े रहना है। फुटबॉल में आपको पूरे फील्ड में रनिंग करते रहना है। बास्केटबॉल में आपको पूरे फील्ड में रनिंग करते रहना है। तो फिजिकल फिटनेस और पोस्चर, आपका गस्चर, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको एक अच्छा ऑफिशियल बनाने में कंट्रीब्यूट करता है। देन वी कम टू द ट्रेन, सर्टिफाइड एंड एक्सपीरियंस। फॉर गिविंग अ वेरी गुड डिसीजन, फॉर executing officiating, we must have trained and certified. जैसे if you want to act as an official in any district level game, you must have a certificate, you must have cleared the certificate up to the district level. But whenever if you want to execute or if you want to do some officiating work in national level, you must have qualification for national level. अगर आप district level के टूर्नामेंट में officiating करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट है, आप सर्टिफाइड हो उस टूर्नामेंट को कंडक्ट करने के लिए, तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट है और आप नेशनल लेवल के लिए ट्राई कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर एक लेवल के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेट के क्लासेस हैं, उनको क्लियर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कम्युनिकेशन। There will be 2 type of communication for officiating. One is visual, one is verbal. आपको हर एक सिचुएशन में अपने गस्चर से, अपने वॉइस से कम्युनिकेट करना होता है। प्लेयर्स को विजिल से कम्युनिकेट करना होता है, प्लेयर को कंट्रोल करनी होती है सिचुएशन। तो आपको इन दोनों कम्युनिकेशन का, चाहे वो वर्बल हो चाहे वो नॉन वर्बल हो, आपको इस पे कमांड होना चाहिए। एक अच्छे ऑफिशियल के पास इसकी कम्युनिकेशन जिसकी अच्छी होती है वो एक अच्छा ऑफिशियल बन सकता है। Then we come to the technology savvy. टेक्नोलॉजी सेवी का मतलब होता है कि टेक्निकल जितने भी नॉलेज हैं उनका व्यवहारिक ज्ञान रखने वाला। मीन्स
व्यावहारिक मतलब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, टेक्नोलॉजी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जानने वाला, उसको एग्जीक्यूट करने वाला। अगर आप समय के हिसाब से, टूर्नामेंट के हिसाब से उस प्रैक्टिकल या टेक्नोलॉजी को यूज करना जानते हैं जो कि हमारे ऑफिसिएटिंग वगैरह में यूज होता है, तो हम एक अच्छे सक्सेसफुल ऑफिसर बन सकते हैं। आपको जैसा हमने पहले वीडियो में दिखाया, अगर उस समय ये टेक्नोलॉजी होती जिससे वो रिप्ले करके या अपने अपने दिए हुए जजमेंट के ऊपर रिकॉल करके देख सकता कि वहां पर मैराडोना ने हाथ लगाया था, तो वो एक अच्छी कॉल होती और वो टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज हो सकता था। Then finally come to the attitude. I have already explained that attitude play an important role. आपको आपके को ऑफिशियल के साथ, प्लेयर के साथ एक अच्छा व्यवहार, एक अच्छा एटीट्यूड के साथ पेश आना चाहिए, जिससे टूर्नामेंट अच्छे तरीके से हो पाए। Then we will talk about the responsibility of official. There will be three main portion where the responsibility of official takes place. एक तीन तरह से एक ऑफिशियल को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, एक गेम के पहले, एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है गेम के दौरान, और दूसरा गेम के खत्म होने पर। इन तीनों में से किसी को भी स्किप नहीं किया जा सकता है, तीनों अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट हैं और की रोल अपना अदा करते हैं। Then whenever we are talking about the pre-game situation, जब भी हम एज ए ऑफिशियल एक्ट करते हैं और प्री गेम में हमको सर्टेन पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए। वी हैव टू कीप सर्टेन पॉइंट इन माइंड बिफोर स्टार्टिंग द गेम। उसमें सबसे पहला है यू हैव टू नो द मैनुअल। मैनुअल जो है वो कंपटीशन रूल है, मैनुअल जो है वो कंपटीशन लॉ है उस पर्टिकुलर गेम के, उस पर्टिकुलर कंपटीशन के। तो एक ऑफिशियल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो के मैनुअल को टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले एक बार देख ले, भले वो उस चीज को जानता हो लेकिन एक बार रिवाइज कर ले, उसको अपने प्री गेम कॉन्फ्रेंस के रूप में एज ए टूर्नामेंट के पार्ट जो मैनेजर हैं, जो ऑफिशियल हैं, उनके साथ एक डिस्कस कर ले, जिससे एक अच्छी इन्वायरमेंट हो और सभी को गेम सिचुएशन की पता हो कि कौन से रूल से क्या होने जा रहा है। कम टू द नेक्स्ट, अराइविंग ऑन टाइम। ऑफिशियल को किसी भी टूर्नामेंट के, किसी भी गेम के डिसाइडेड टाइम के पहले आना चाहिए और आके अपने सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करना चाहिए। उसमें कंडीशन क्या है, जो पहली कंडीशन आती है वो प्री गेम डिस्कशन। प्री गेम डिस्कशन आप अपने को ऑफिशियल के साथ प्री गेम डिस्कशन कर सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से मेजर चीज जो है वो आपको देखनी है। ये जो प्री गेम सिचुएशन है इसकी डिस्कशन डिपेंड करती है कि किस तरह के गेम की ऑफिसिएटिंग आप करने जा रहे हैं। एक्चुअली दिस इज द सिचुएशन वेयर द ऑफिशियल इज गोइंग टू मेक सम स्ट्रेटेजी बनाने की सिचुएशन है प्री गेम में कि हम कैसे ऑफिसिएटिंग करेंगे। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज इंस्पेक्शन ऑफ फैसिलिटी। एक अच्छे ऑफिशियल की एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गेम शुरू होने के पहले सभी मार्किंग, सभी नेसेसरी इक्विपमेंट, सभी प्री रिक्विसाइट्स हैं गेम को कंडक्ट करने के लिए, वो सभी चीजों का एक बार इंस्पेक्शन कर ले और फुल्ली सेटिस्फाइड होने के बाद ही गेम को स्टार्ट कराने की अनुमति दे। देन वी कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ फेलो ऑफिशियल। ऐसी भी कंडीशन आती है कभी कभी जिसमें पहले से ऑफिशियल एक दूसरे को नहीं जान रहे होते हैं, तो प्री गेम सिचुएशन एक ऐसी पॉइंट है, ऐसा एक प्लेस है, ऐसी एक टाइम है जहां पर आप एक दूसरे को जान लें, उनकी स्ट्रेंथ को जान लें, जिससे आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो। एंड द लास्ट वन इज इन प्री गेम एग्जामिन द स्कोर शीट एंड क्लॉक। हर एक गेम अपनी अपनी गेम की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सभी गेम की स्कोर शीट होती है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए ऑफिशियल कि हम जाएं और गेम की स्कोर शीट पे विशेष ध्यान दें, स्कोरर से एक बार बात करें, उनसे समझ लें कि क्या वो कंफर्टेबल हैं सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने में। एक अच्छी तरह बात करने के बाद जब पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं तभी गेम के लिए जाएं। जो गेम टाइमिंग बेस्ड होते हैं उसमें क्लॉक की स्थिति भी समझना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि क्लॉक क्या है, क्या वो सही काम कर रहा है, क्या सभी क्लॉक एक जैसे काम कर रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी देखना एक अच्छा साइन है प्री गेम में ऑफिशियल्स के लिए। ड्यूरिंग गेम में एक ऑफिशियल को
ये उसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ड्यूरिंग गेम ही उसको तुरंत डिसीजन लेने पड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिचुएशन, उसको तुरंत सिचुएशन एंड डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ज्यादा हो जाती है। उसको उसका जो विजन है वो बहुत ही वाइड होना चाहिए, पूरे फील्ड तक होना चाहिए, जिससे वो पूरे फील्ड को कंट्रोल करने की कंडीशन में हो। यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि एक ऑफिशियल होता है वो पूरे गेम को कंट्रोल करने वाला पर्सन होता है, यार ऑफिशियल हैज टू बी एक्ट एज ए कंट्रोलर ऑफ द गेम। उस गेम को कंट्रोल करने के लिए उसका विजन जो है वो ब्रॉड होना चाहिए। देन ही हैज टू प्ले इम्पार्शियल, और उसको किसी की तरफ, किसी एक भी पक्ष टीम की तरफ डिसीजन नहीं देना चाहिए, और न्यूट्रल होके दोनों तरफ की अच्छाई और बुराई देख के ऑन द बेसिस ऑफ लॉ दे हैज टू टेक डिसीजन। एंड द नेक्स्ट इज रीड द गेम सिचुएशन। जस्ट बिकॉज ऑफ ये गेम सिचुएशन है, इसमें आपको फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में एज ए ऑफिशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सी चीज समझनी पड़ेगी कि आपको डिसीजन कैसे देना है, क्योंकि आपकी एक गलत डिसीजन, किसी भी एक फेवर में डिसीजन, वो मैच की सिचुएशन बिगाड़ सकती है, वो प्लेयर्स के टेम्परामेंट बिगाड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर आपको देखना है कि समझना है, और उसके बाद आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल से, चाहे वो विसिल हो चाहे वो गेस्चर हो, आपको कम्युनिकेट करना है, आपको डिसीजन लेना है। देन कई ऐसे गेम होते हैं जिसमें इंजरी के चांसेस होते हैं, तो वहां पर भी आपको ये पहले से पता होना चाहिए। जैसे कबड्डी हो गई, कबड्डी में स्ट्रगल के दौरान इंजरी के चांसेस होते हैं, तो ये ऑफिशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज सिचुएशन को समझे और वहां पर अपने डिसीजन को दे। यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन का मतलब है यहाँ पर कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जो जजमेंट है, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए सभी के लिए, सभी टीमों के लिए, सभी पहलुओं के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन लॉ। अनइंटरप्टेड फ्री फ्लो ऑफ गेम, या ये एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी ऑफिशियल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी गेम को वो बिना इंटरप्शन के, रिदम से और उसके अपने टेम्पो पर उसको खत्म करे, किसी भी तरह की अननेसेसरी इंटरप्शन से उसको दूर रखे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज विसिल व्हेन यू आर श्योर। विसिल यहाँ पर है क्योंकि अधिकतर ऐसे गेम है, फुट सॉकर हो गया, जहां पर आपकी हॉकी हो गई, जहां पर आपकी एक विसिल पूरे मैच के टेम्परामेंट को चेंज कर सकती है। इसलिए जब आप श्योर हैं कि ऐसी कंडीशन है, उसी कंडीशन में आप विसिल ब्लो कीजिए। और उसके लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी माइंड बॉडी कॉम्बिनेशन ऐसी हो जाएगी कि आप जब चाहेंगे, जब आप सर्टेन, आपकी आई उसको रिकॉल करेगी कि ये सिचुएशन ऐसी है, तुरंत आप ब्लो कर देंगे। ओके, देन योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ऐसा है कि आप कि विसिल ब्लो और आपकी बॉडी लैंग्वेज वो हमेशा मैच होनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज ही मैच सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती है। एंड अगर आप ये सभी चीज करेंगे तो आपकी अपनी एक गुडविल बनेगी, जो कि एक ऑफिशियल के लिए जरूरी है। इस चीज को देखने के लिए एक बहुत अच्छी फनी वीडियो है, आप देखिए, आपको अच्छा लगेगा।
Okay, so this is the video. This was the video. Actually, this video has two parts. Again, इस वीडियो में भी दो पार्ट हैं. One is the player point of view and one is the official point of view. प्लेयर ने इसमें अपने टैक्टिक्स को यूज किया है जिससे वो ऑफिशियल की सिंपैथी अपनी तरफ गेन कर पाए, कुछ मैन सिचुएशन को अपनी तरफ फेवर में कर पाए. बट दिस इज द प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू. ये प्लेयर की पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो उस सिचुएशन को अपने फेवर में लेना चाहता है. बट ऑफिशिएटिंग करते समय इस तरह की जितने भी टैक्टिक्स हैं जो फील्ड में एक्चुअल प्ले करते हैं, इन सभी का एक ऑफिशियल्स को विशेष ज्ञान होना चाहिए और उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग क्षमता के बेस पे ही वो इस तरह के सभी टैक्टिक्स को ओवरकम कर सकते हैं. जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि उस एक प्लेयर ने दूसरे की हाथ को लेके अपने आंखों में मार दिया. दिस इज पॉसिबल. और आपकी अपनी इंटेलिजेंस पे ये डिपेंड करेगा कि आप इस गेम सिचुएशन को किस तरह से आप टैकल कर रहे हैं. ओके, जैसा कि आपने पहले भी गेम पहला वाला वीडियो देखा, पहले वाले वीडियो में भी बोला, दूसरे वाले वीडियो में, अगर वहां पर टेक्नोलॉजी नहीं होती, टेक्नोलॉजी की यूज क्यों हो रही है? क्योंकि ऑफिशिएटिंग में डे बाय डे इंप्रूवमेंट चाहिए और जो कंट्रोवर्सीज होती हैं उसको खत्म करने के लिए एक जिस तरह से फिजिकल एजुकेशन टीचर एक एड के रूप में टीचिंग एड यूज करता है अपनी टीचिंग को एनहांस करने के लिए, उसी तरह से ऑफिशिएटिंग को भी उसकी स्किल को एनहांस करने के लिए ढेर सारे एड्स आ गए हैं मार्केट में जो उनकी ऑफिशिएटिंग को और भी बेहतर करते हैं, उनकी जजमेंट टेकिंग क्षमता को और भी बेहतर करते हैं. जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे सामने दे रखा गया है, वीडियो असिस्ट रेफरी. यहाँ पर आपको ऐसे भी हैं जो अलग अलग एंगल से आपको वीडियो कैप्चर करेंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एनहांस करेंगे. ओके, यहाँ पर देयर आर सम लिस्ट ऑफ ऑफिशिएटिंग एड्स. वन इज हॉकाई. आज जितने क्रिकेट पसंद करने वाले लोग होंगे उनको पता होगा कि हॉकाई है. वीडियो रेफरेंसिंग है, जो हम आजकल रेफर करके कई ऐसे डिसीजन होते हैं जो रॉन्ग डिसीजन होते हैं, जो मैच की सिचुएशन चेंज करने वाले होते हैं. उस कंडीशन में रॉन्ग डिसीजन किसी एक तरफ को बायस्ड होके चले जाते हैं. वो अननेसेसरी, ऑफिशियल चाहता नहीं है वैसा करना, लेकिन वो अनविलिंगफुली
वो ऐसा कर देता है जिससे सिचुएशन बिगड़ जाती है। उसको असिस्ट करने के लिए ये ढेर सारे इक्विपमेंट हैं जो कि उसकी ऑफिस सीटिंग को अच्छा करते हैं। जैसे फोटो फिनिश है, फोटो फिनिश, और पहले मैनुअल स्टॉपवॉच आते थे, आजकल फोटो फिनिश है, जिससे फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के भी अंतर डिसाइड होते हैं और डिस्प्यूट कम होते हैं। उसी तरह स्नीकोमीटर है, क्रिकेट में स्नीकोमीटर यूज करते हैं। एम्पायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक लाइन जज है जो कि लाइन की जजमेंट करती है। गोल लाइन टेक्नोलॉजी है जो गोल लाइन पे होती है और वो डिसाइड करती है कि क्या उसको यूज करने की भी सोच रहे हैं कि किस तरह से बॉल गोल लाइन को पार हुई या नहीं हुई। उस तरह अलग अलग गेम के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी हैं, अवेलेबल हैं, जिनका विशेष अगर पॉसिबल है तो उसकी ज्ञान आपको लेनी चाहिए। अधिकतर फ्री हैं, उनको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके से उसकी पेड हैं, उनको आप पे करके आप अपने ज्ञान ले सकते हैं और उस नॉलेज के बेस पे ऑफिस सेटिंग कर सकते हैं। देन एक हमने बात की प्री गेम की, हमने बात की ड्यूरिंग गेम की। अब पोस्ट गेम, गेम को खत्म करने के बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट टास्क? द नेक्स्ट टास्क इज टू गिव कांग्रेचुलेशन टू विनर एंड विशिंग आल्सो टू लूजर। विनर और लूजर दोनों को ही आपको बात करनी चाहिए एज ए ऑफिशियल। विनर्स को कांग्रेचुलेशन देना चाहिए और लूजर्स को उनके अच्छे खेल के लिए उनसे बात करनी चाहिए, उनको अगले गेम के लिए सांत्वना देनी चाहिए कि आपने अच्छा गेम खेला। जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन इज ए प्लेटफॉर्म वेयर टू टीम्स आर कम्पीट। जो दो टीमें खेलेंगी उनमें से एक टीम हारेगी, एक टीम जीतेगी। तो आपका परफॉर्मेंस आपकी स्किल डिसाइड करती है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इस तरह करके एक अच्छी सी टॉक करनी चाहिए जिससे लूजर टीम की कॉन्फिडेंस लूज ना हो। देन signature of score sheet is an important part after the game. आप एज ए ऑफिशियल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गेम खत्म होने के बाद आप स्कोर शीट पे सिग्नेचर करें और सिग्नेचर उसको क्रॉस वेरीफाई करके बाद डिस्कशन करने के बाद उस पे सिग्नेचर करें। Then the most important part, if there any protest, you have to cooperate with the protesting team. होता क्या है कि अधिकतर टीमें जब प्रोटेस्ट करती हैं तो हम उसको अपने ईगो पे ले लेते हैं एज ए ऑफिशियल और उससे ठीक तरह से बिहेव नहीं करते। एज ए ऑफिशियल मेरा ये मानना है कि हमको हर एक सिचुएशन को समझना चाहिए। हो सकता है कि वो मेरे ही अगेंस्ट हो, लेकिन उस सिचुएशन को समझ के कॉपरेशन कीजिए और रिजल्ट ज्यूरी पे छोड़ दीजिए। लेकिन कॉपरेशन इज इंपॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट करते कोई भी करे, आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। देन कम टू द डोपिंग। डोपिंग एंड डोपिंग रिलेटेड रूल्स आर केप्ट टू बी माइंड आफ्टर द गेम। आपको अगर ऐसा कुछ लगता है तो उसकी पूरी प्रोसीजर फॉलो कीजिए और फॉलो करवाइए। देन द कंफर्मेशन ऑफ रिजल्ट। इन दिस आफ्टर signature of scores, the result, who is winner, कौन किसका क्या टाइमिंग है, ये सभी चीजें आपको डिसाइड करके रिजल्ट को कंफर्म करना होता है एज ए ऑफिशियल। देन सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन है कि आपको एक बार ऐसा करना चाहिए, को प्लेयर से बात करनी चाहिए कि क्या हमने जो ऑफिस सीटिंग की उस ऑफिस सीटिंग के कुछ पहलू हैं, क्योंकि यही आपकी एक्सपीरियंस है जो आपको अगले मैच के लिए बेस करेगी और आपकी ऑफिस सीटिंग को और ज्यादा निखारेगी। एंड लास्ट with dealing with the athlete who failed in doping. आपको एक बार अगर ऐसी कंडीशन है जिसमें एथलीट डोपिंग में फेल हैं तो उनसे भी बात करना एक अच्छा माना जाता है आफ्टर द गेम। Then the most important part, this is the slide which deal with the decision making framework. Ethics for decision making framework. Ethics for decision making framework can be divided into 4 parts. In part 1, you have to know the fact. What are the facts on the basis of which we are going to take decision, and then you have to recognize yourself. You have to realize. You have to search the fact, truth behind the fact, and then you have to take decision. And finally, on the basis of decision, you have to keep that the decision has to be come into existence. मतलब कि किसी भी डिसीजन लेने के 4 पहलू हैं। पहली चीज आपको ये देखना पड़ता है कि क्या चीज फैक्ट है, क्या सत्य है,
सत्यता कैसे है, कौन कौन से उसके पहलू हैं, उन पहलुओं को देखना, उसको सेल्फ रियलाइज करके उसको जांच करने के बाद उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करके फिर उस पर डिसीजन लेना, और फाइनल जो आपने डिसीजन लिया है उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि नहीं, इस चीज को देखना, ये इथिकल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। Now we are coming to the practical tips for effective and successful officiating, and this is, इसमें सबसे पहला जो आता है communication. As I told earlier, in different occasions you have to communicate with the participant as well as the coaches on different occasions. Then what will be the contributing factor in communication? Your voice, your whistle, your indication, your body language. These are the factors which can be contribute or this miscommunicate your decision. So you have to keep in your mind while communicating with participant or coach. किसी भी कोच और पार्टिसिपेंट से कम्युनिकेट करने से पहले आपको आपकी वॉइस किस तरह की वॉइस है, आपकी विजलिंग की क्या वॉइस है, आपके कौन कौन से इंडिकेशन आपने किस तरह के दिए, और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये 4 चीजों को ध्यान में रख के ही आप जब भी कम्युनिकेट करते हैं तो करना चाहिए। देन द एसेंशियल पॉइंट इन कम्युनिकेशन इज, आप जो वॉइस बोल रहे हैं, पहला है कि क्या वो रूलिंग है या डिसीजन लेने वाली है, क्योंकि आपको पूरे सिचुएशन को, पूरे गेम को कंट्रोल करना है, तो ऐसा कुछ जगह आएगा जहां पे आपको रूलिंग, आपको कंट्रोल करने के लिए रूलिंग वाली करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसी कुछ सिचुएशन आती है जहां पर आपको पोलाइट बिहेव करना पड़ता है। तो आपके वॉइस में भी वो टोन होना चाहिए जिससे आप सिचुएशन को कंट्रोल कर पाए, जहां पर आपको रूल करना वहां रूल करें, जहां पर आपको पोलाइट होना वहां पोलाइट हो। देन कम टू द नेक्स्ट, चूज एन वर्ड। आपने जो बोला है उसके सिलेक्शन ऑफ वर्ड मस्ट बी एप्रोप्रिएट। किस जगह पर क्या वर्ड बोलने हैं वो वर्ड आपके सेलेक्टेड होने चाहिए, कि जहां पर रूल करनी है वहां पर किस तरह की बात बोलनी है, कौन से वर्ड यूज करने हैं, और जहां पर पोलाइट होना है वहां पर किस तरह की वर्ड यूज करनी है और बात बोलनी है। एंड लुकिंग एट द पर्सन, इसका मतलब है कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी आंखों में आंख डाल के बात कीजिए, उसको ये लगना चाहिए कि आप उसको इग्नोर नहीं कर रहे हैं या आप उसकी बात सुन रहे हैं, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड लास्ट थिंग इज, जहां पर आपकी वॉइस को आपको जहां बल देना है आपकी बात पे, वहां पर आपकी स्ट्रेंथ दिखाई देना चाहिए और उसको क्लियर सुनाई देना चाहिए पार्टिसिपेंट को कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जिससे कोई भी मिस कम्युनिकेशन ना हो। मूविंग टू सेकंड, देखिए जैसे पिक्चर में यहाँ पर है, जब तक हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं थी हम डिसीजन लेते थे, और नंबर ऑफ केस ऐसे एग्जांपल्स हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, बहुत से प्लेयर हैं जिनके साथ आप गलत डिसीजन चला जाता था एलबीडब्ल्यू में, लेकिन जब से आपके पास टेक्निकल सपोर्ट आया, आप एबल हैं कि आप अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। ओके, इसमें आपको क्या रखना है कि आपको कम से कम टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़े, उसके लिए आपको जो ऑब्जर्वेशन आपकी हो वो बहुत ही सटीक होनी चाहिए। उसके बाद आपके अपने एक्सपीरियंस को यूज करना चाहिए। सपोज कीजिए जैसे हमने लास्ट वीडियो देखा, उस वीडियो में बहुत से ऐसी टैक्टिक्स यूज की गई प्लेयर के द्वारा जिसका अगर आपको पहले से ज्ञान हो तो वहां पर आप फेयर डिसीजन दे सकते हैं। तो उस कंडीशन के लिए आपको एक्सपीरियंस, हर एक गेम की एक्सपीरियंस प्लस उसकी बेसिक नॉलेज ही पता होना चाहिए। देन कम टू द नेक्स्ट, नो द रूल थॉरोली। रूल के हर एक पार्ट को, उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव और उसकी टैक्टिकल पार्ट को, कि प्लेयर इस रूल को कैसे यूज कर सकता है, उसका नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ के डिसीजन दे सकते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज नो द टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड इन द गेम फॉर पर्टिकुलर गेम। उस गेम की जो टर्मिनोलॉजी है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी टर्मिनोलॉजी किस चीज के लिए, किस सिचुएशन के लिए यूज होती है। एंड मास्टरी ओवर सिग्नल्स, किस परिस्थिति में कौन सी सिग्नल देनी है, किस फाउल के लिए कौन सी सिग्नल जाती है, ये एक गेम के फ्लो को बनाए रखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसका प्रैक्टिस करना एक ऑफिशियल की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देन clarity about the neutral
नेचर ऑफ स्पोर्ट्स, आपकी नेचर ऑफ स्पोर्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा गेम है, उसमें किस तरह का नेचर है गेम का, उसमें किस तरह के ऑफिशिएटिंग की जरूरत पड़ती है। देन एंटिसिपेशन, कई ऐसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप कबड्डी में कई ऐसे सिचुएशन आते हैं स्ट्रगल के दौरान कि इंजरी के चांसेस होते हैं, तो वहां पर आपको अपने एंटिसिपेशन एबिलिटी के द्वारा जज करनी पड़ेगी और आपको जजमेंट देना पड़ेगा। प्रॉक्सिमिटी स्टैंड फॉर द क्लोजनेस, आप कितने क्लोज हैं उस डिसीजन को देने के, ये एक मायने रखता है। अगर आपको ऐसा लगे, आपने क्रिकेट में देखा होगा कि कई ऐसे डिसीजन हैं जो मेन एम्पायर लेग एम्पायर से, मेन एम्पायर थर्ड एम्पायर से पूछता है कि वो उस स्थिति में नहीं है, उसके उस पास नहीं है कि वो डिसीजन दे पाए। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने ऊपर जजमेंट न लेके, अगर आपके पास आपकी स्थिति से अच्छी स्थिति में उसके पास कोई है ऑफिशियल आपका, असिस्टेंट ऑफिशियल आपका, तो आपको उसकी सहायता लेनी चाहिए। और जो इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फ्लो ऑफ फेलो ऑफिशियल, इसमें कंडीशन है कि जैसे मैंने आपको बोला कि एक मेन ऑफिशियल को लेग एम्पायर से या लेग एम्पायर को थर्ड एम्पायर से, ये जो आपके फेलो ऑफिशियल्स हैं उनकी आपस में कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि ये हमको हेल्प करेंगे और उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसका आपको यूज करना चाहिए। एंड द फाइनल वर्ड इज फोकस। जितने देर भी आप ऑफिशिएटिंग करें, आपका फोकस गेम पर होना चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन के बेस पे पूरी फ्लो जो है वो गेम पर होनी चाहिए। देन जितने भी कंपटीशन होते हैं, just because of the players are in the form of optimal aggression, there is a chance of conflict की सिचुएशन होती है। क्यों? क्योंकि प्लेयर खेल रहे होते हैं, वो ऑप्टिमम एग्रेशन की स्थिति में होते हैं। तो एक ऑफिशियल को ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये उसकी स्किल होनी चाहिए कि वो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किस तरह से करे। इसके लिए दो मेन फैक्टर काम करते हैं, एक रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्ट और एक सेटलमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। पहले वाले में कंडीशन में है कि एक प्लेयर को, एक ऑफिशियल को ये चाहिए कि वो ऐसा प्रिटेंड करे कि कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो, उसके बिहेवियर से कुछ चीजें होती हैं जो बाहर से क्रिटिसिज्म हो रही होती हैं, अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए कि कुछ ऐसा उसके बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो ना जाए जिससे प्लेयर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन आए कि वो बायस्ड है। इस तरह से वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है और कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन को रिड्यूस कर सकता है, जिससे कम से कम आपके पास कॉन्फ्लिक्ट आए। दूसरी कंडीशन है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो एज ए ऑफिशियल यू हैव टू सेटलमेंट ऑन द स्पॉट, आपको वहीं पर उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास चीजों को समझने के लिए, बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए आपके पास अच्छे वर्ड होने चाहिए जिससे आप उस कॉन्फ्लिक्ट को सेटलमेंट कर पाए। आपके पास प्रैक्टिकल लेवल की, आपके पास क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए कि कौन है, कौन उस सिचुएशन को समझ पा रहा है, तो वो चीज आनी चाहिए। और आपको आपकी फर्मली आपको अच्छे से बात करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, और एकदम काम। मैंने पहले ही बोला कि कामने से एक अच्छा क्वालिटी है जो सभी ऑफिसर्स के पास होनी चाहिए। लास्ट इज, फर्स्ट यू हैव टू सी दिस वीडियो। Cheating in sport, doping, violent conduct. But what about losing on purpose to win money on a bet? Or to face an easier opponent in the next round? This is called competition manipulation or match fixing. It kills the competition, the excitement, the drama. It kills the motivation for clean athletes and fans. It kills the spirit of sport. Disrespecting your team, disrespecting your opponents, disrespecting your fans. You can make a difference. Don't bet on your sport. Don't fix, always do your best. Don't share inside information and always report. दिस इज द वीडियो। ये एक वीडियो था जिससे आपको पता चलेगा कि एक जैसे हम डोपिंग करते हैं, हम बेटिंग कर लेते हैं, हम मैच फिक्स कर लेते हैं, उस कंडीशन को भी ऑफिशियल चाहे तो बहुत हद तक अपने एक्ट से कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए
ये गेम की सिचुएशन है, आपको इस सभी चीजों से पता होना चाहिए कि किस किस तरह की एक्ट होती है। उसके लिए एक ऑफिशियल से इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में 2 चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं कि ट्रूथफुलनेस, आप कितने हॉनेस्ट हैं, कितने इम्पार्शियल हैं गेम की सिचुएशन में। ये एक अच्छा ऑफिशियल जब भी होगा वो ट्रूथवर्दी होगा। देन आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, आपकी अपनी रोल है, उस रोल को कितने अच्छे से प्ले कर रहे हैं, ये भी एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आती है। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो एक्सपेक्ट की जाती है एक ऑफिशियल से, कि वो उस रोल को प्ले करने के लिए फिजिकली और मेंटली कितना प्रिपेयर्ड है, जो उस टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड कॉम्पिटेंट, क्या वो कॉम्पिटेंट है उस स्किल को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये 4 बेसिक चीज है जो एक ऑफिशियल से एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी जनरल पॉपुलेशन को। एंड देन the second one is the second part of official ethical responsibility of officiating is working with other official। आप एक कॉलेजेस के साथ, अदर ऑफिशियल के साथ किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, वो भी एक इथिकल वे में आता है कि आप उसको किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, टैकल किस तरह से कर रहे हैं, कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं, अपने नॉलेज का शेयरिंग कॉलेजेस एंड अदर स्टाफ के साथ कैसे कर रहे हैं, और उसको उसकी जरूरत पड़ने पर उसको कितना सपोर्ट दे रहे हैं। ये एक इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सभी ऑफिसर्स को होनी चाहिए। एंड द फाइनल वर्ड इज रिटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। रिटेन रिपोर्ट में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टूर्नामेंट और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर मैच, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू राइट अ रिपोर्ट। यहाँ पर आपका कंडीशन है कि जो भी आप कम्युनिकेट करें, जो भी आप मैसेज करें, जिस तरह की भी फीडबैक दें, उसका फॉर्मेट क्या हो, वो किस तरह से कम्युनिकेट हो रहा है, ये एक आपकी एक अच्छी स्किल के अंतर्गत आता है। यू मस्ट नो द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द राइटिंग टेक्निक ऑफ writing report. And then the second point is an important task of many officials is to complete a report after the competition। सभी कंपटीशन खत्म होने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट जो सबमिट करनी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी है और क्या इफेक्टिव वे है उसको प्रेजेंट करने का। और उस रिपोर्ट राइटिंग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप कितने हॉनेस्ट हैं, कितने रिस्पेक्टफुल हैं, कितने हैं, और आपने रिपोर्ट की डिलीवरी में कितनी इंटीग्रिटी दिखाई है। दिस इज द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ ऑफिशियल। किसी भी ऑफिशियल्स को यहाँ पर आपके बिहेवियर कैसे हैं, हम पिछले स्लाइड्स में बात कर चुके हैं कि डिफरेंट पार्ट हैं जो आप गेम सिचुएशन को एक ऑफिशियल की बिहेवियर डिसाइड करती है। उसमें जो सबसे पहला है वो बी इम्पार्शियल, आपको किसी भी टीम के फेवर में पार्शियल नहीं होना चाहिए। बी कंसिस्टेंट, अवॉइड एनी सिचुएशन व्हिच मे बी perceived as a conflict of interest, accept responsibility for all action taken, condemn unsupporting behavior, किसी भी unsupporting behavior का condemn करें, उसको promote न करें, and promote respect for all competitors, emphasis on the spirit of the competitor rather than the errors। आपको competition के spirit को emphasis करना चाहिए, error पे नहीं, and ensure that the behavior and comment are always positive and supportive। Keep up to date with the latest trend in officiating and the principle of growth and development of young people। Finally, the place of safety, welfare and athlete above all else। ये सभी चीजों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो एक अच्छे ऑफिशियल के रूप में आप कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे। This is the summary of my presentation, and in summary I may say that a good official must possess the right skill for pre-game, during game and post-game. They have to act as a neutral person, they have to communicate, they must know the effective communication, they must have knowledge for management of conflict, they must know the ethical rules and responsibility, they have to act as a tactful। Thank you। This is all about my presentation। Participants are requested to ask question। Sanjay sir, may I close this share? Yes sir, yes sir, you just stop share sir।
You can start your video, sir. Thank you. Yeah. First of all, thank you so much, sir, for this wonderful lecture, for this wonderful session. So now we have some question from participant side. So the first question is, it is very simple also and as well as typical. What is the difference between referee and umpire? This is depend upon the गेम टू गेम. ये गेम से गेम में डिफर करता है. कहीं पर उसको रेफरी बोलते हैं, कहीं एम्पायर बोलते हैं. एम्पायर बेसिकली वहां बोलते हैं जहां पर गेम को खिलाना होता है. जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में एम्पायर जो है वो गेम खिलाता है और रेफरी जो है वो उसके ऊपर होता है. तो ये गेम और सिचुएशन के बेस पर टैकल किया गया है. बेसिक डिफरेंस है कि योर वॉइस इज ब्रेकिंग. सॉरी, नहीं सुनाई दे रहा है संजय सर, सुनाई दे रहा है मेरे. ओके ओके, या प्लीज जो गेम यू कैन कंटिन्यू सर. जो who conduct the game is known as umpire, and the referee has to final authority to execute the game. This is the basic difference between umpire and referee. Sanjay sir, next. Am I audible, Sanjay sir? उनको शायद सुनाई नहीं दे रहा है. ये बहुत अच्छा सिंपल तरीके से समझाया सर आपने, काफी अच्छा सिंपल तरीके से समझाया सर. ओके ओके. Sanjay sir, audible? So the next question. Yeah, you are audible, sir. Okay. The next question is, if official is not taking right decision during the match, so how can coach deal with that situation? One thing, मेरा तो ये this is my opinion. There is a jury of appeal. You have to go to the proper channel, and most important thing, you have to understand the situation. अगर ऑफिशियल जानबूझ की गलती कर रहा है तो वो कभी नहीं मानेगा. और ये नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में ऐसा नहीं देखा जाता. दिस इज सीन इन लोअर लेवल टूर्नामेंट कि ऑफिशियल जानबूझ के ऐसा कर रहा है. ऊपर लेवल के टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता. लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है, देन यू हैव टू गो टू द प्रॉपर चैनल. और आपको मैच का टेम्परामेंट उस चीज को देख के बिगाड़ना नहीं चाहिए. दिस इज माय सजेशन. Okay. So another question we have, since we are using the electronic devices more during in match, after the match, before the match also, so it has whether it has reduced the reduced the what we can say, the official or umpire image or not? No. Condition देखिए क्या है. I have used the word officiating aids. जैसे टीचिंग एड्स जो है वो टीचर की एफिशिएंसी को बढ़ाने में काम करता है. तो ये जो इक्विपमेंट आए हैं ये ऑफिशियल की एबिलिटी को और एनहांस करने के लिए है. आदमी है और वहां पर क्विक डिसीजन लेना है, तो जरूरी नहीं है कि आउट ऑफ 100 टाइम्स हम 100 टाइम ही सही हो. कभी एक सिचुएशन है जो कॉम्बिनेशन नहीं बने और गलत डिसीजन दें, तो अपने आप को ठीक करने के लिए अगर मेरे पास असिस्टेंट्स हैं तो उसका बेटर यूज करके हेल्दी कंपटीशन देने में कहीं से भी कोई बुराई नहीं है. और उससे कहीं भी ऑफिशिएटिंग और ऑफिशियल के व्यक्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता. Okay. So the next question is, can an official report about doping also? ऐसी कुछ कंडीशन आए तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये इसको मैंने पहले जैसे बोला डोपिंग वाली कंडीशन में आया था. डोपिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन जो ऑफिशियल को दी जाए उसी से आपका मतलब होना चाहिए. जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर द मैन हु वाज कंट्रोलिंग द एक्चुअल मैच. आप एक्चुअल मैच सिचुएशन कर रहे हैं. और डोपिंग के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन हर जगह होती है, एक अलग टीम होती है. तो ये दीज आर द डोपिंग अंडर कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और टीम. ऑफिशियल को अपनी ऑफिशिएटिंग से ही ज्यादा मतलब रखना चाहिए. अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तभी आपको डोपिंग में एंटर करना चाहिए. दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. One more question we'll have. What are the creative quality that umpire has to acquire so that he can do their job efficiently? क्रिएटिव क्वालिटीज में कंडीशन ये है कि आप अपनी बातों को कैसे रख रहे हैं, आप अपने सिग्नल्स को कैसे रख रहे हैं, वो आपको क्रिएटिव करता है और लोगों की नजरों में आपका छवि बनाता है. पहली बात तो आपको जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रूल ही लेने हैं, लेकिन उस रूल के लेने के तरीके
जैसे वो क्रिकेट में था, मैं उनका एम्पायर का नाम बोल रहा हूँ, वो छक्का बड़े अच्छे से देते थे, तो लोग उनको भी देखते थे। तो वो एक क्रिएटिविटी है जो आपको एक अच्छा ऑफिशियल बना सकता है आपकी तरफ लोगों के। टॉफल थे, क्या नाम था उनका, न्यूजीलैंड का टॉफल है शायद। तो वो अच्छे से देते थे, लोग उनको देखने के लिए भी जाते थे। कुछ पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐसा होता था कि उन्हीं को देखने जाते थे कि अच्छा देता है तो उसको देखने थे। ये है क्रिएटिविटी, आप कर सकते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रूल। यू आर नॉट फ्री टू गो बियॉन्ड द रूल्स। Okay. Sujit sir, from your side question, please. सर ये ये है जो बिटवीन ए कोच एंड ऑफिशिएटिंग, कौन सा ज्यादा टफर रोल है? सॉरी, Between becoming a coach and a official, what is a tougher role Coach. in terms of कोच coach? कोचिंग करना एक ज्यादा टफेस्ट है, क्योंकि सर देखिए हम इसमें बात करेंगे, जैसे हमारी हॉकी की स्थिति थी। हॉकी में हम बहुत दिनों तक ओलंपिक में राज किए हैं, लेकिन क्योंकि उसकी मैकेनिज्म को हम छोड़ दिए, गेम का नेचर चेंज हो गया, ग्रास से टर्फ आ गया, नेचर ऑफ गेम थोड़ी शिफ्ट हुई, तो वहां की कोचिंग पैटर्न भी चेंज हुई। हमारे संजय सर इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे, हॉकी वाले नेचर को। लेकिन जब कोचिंग है, कोचिंग डे चेंज हो रही है, उसकी प्लेयर की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, नेचर ऑफ टूर्नामेंट चेंज हो रहा है, तो कोचिंग करना एक टफेस्ट काम है इन कंपैरिजन टू ऑफिशिएटिंग। So can we say that a coach will become a better officiate कर सकता है better? I mean, 100%। कोच हर एक सिचुएशन को जानता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको ऑफिशिएटिंग पसंद नहीं होती, लेकिन एक कोच उसका काम ही होता है कि दिन भर खिलाता रहता है। जैसे एक हॉकी का कोच एक अच्छा ऑफिसर बन सकता है, क्योंकि वो दिन भर उसको कराता रहता है। वो गेम अगर उस चीज को समझेगा नहीं तो वो समझाएगा कैसे? तो कोच कैन बी अ बेटर ऑफिसर। But official may not be a good coach. ये भी पॉसिबल है, ये दोनों वाइस वर्सा है, इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन एक अच्छा कोच 100% एक अच्छा ऑफिशियल बनेगा, लेकिन एक ऑफिशियल कोच बने ये जरूरी नहीं। Right. Yeah, I mean, a lot of people actually have this question क्योंकि ये होता है, so coach is a much tougher job compared to official. Temperament अलग है, and this is like a rule book follow करना है इसमें। जी सर एक क्वेश्चन है पिंटू ठाकुर का कि देयर इज ऑलवेज फाइट, काफी बार फाइट हो जाता है प्लेयर्स और रेफरी के साथ, व्हाट इज द बेस्ट वे टू हैंडल इट? सर कौन हैंडल करेगा उसको? मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बोला है कि पहली बात तो ऑफिशियल को भी अपना टेम्परामेंट खोना नहीं चाहिए और लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और प्लेयर की अगर हो जाए तो देखिए ये कंडीशन है, अगर इसको प्रैक्टिकल में लें, प्रैक्टिकल सिचुएशन में लें, और शायद ये जूडो से या ऐसी कंडीशन में आती है, जूडो रेसलिंग, उसमें अधिकतर चांसेस होते हैं फुटबॉल में कि ऑफिशियल से और प्लेयर का हो जाए, जिसमें क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। और मेरा ये मानना है, मैंने इसीलिए बोला कि ऑफिशिएटिंग करते समय आपका पूरा फोकस उसमें होना चाहिए, आपको तुरंत डिसीजन लेने हैं और आपके एक डिसीजन पूरे मैच के टेम्परामेंट को चेंज कर सकते हैं। तो दोनों में ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, दोनों को बचा के रखनी चाहिए। और मैं किसी भी कंडीशन में, डिस्प्यूट की कंडीशन में नहीं जाने की बोलता हूँ। मेरा सजेशन होता है कि डोंट गो फॉर डिस्प्यूट, देयर इज ए पैनल, देयर इज ए टीम, आप उसके लिए अपील कर सकते हो, उसके लिए कंप्लेन कर सकते हो, आप उसके लिए प्रोटेस्ट कर सकते हो, आप उसके लिए जाइए, फिजिकल डिस्प्यूट में मत जाइए, ये हमारा सजेशन। राइट सर, एक क्वेश्चन है गॉर्डन डॉसन करके, वो पूछ रहे हैं कि रेफरी अगर फाइंड करता है कि किसी ने अल्कोहल पी के आया है कोई प्लेयर, क्या वो रेफरी उसको निकाल ले, उसको फिर वो गेम कंटिन्यू होगा क्या? मतलब रेफरी का क्या रोल होता है अगर उसको पता होता है कि कोई प्लेयर, और या कोई रोल होता ही नहीं? कंडीशन है और आपके पास इथिकल टीम है, वो टीम जो को इसको देख रही है, तो ऑफिशियल चाहे तो उसको कंप्लेन कर सकता है कि ऐसी कंडीशन है और आप देख। लेकिन ये क्योंकि डोपिंग डायरेक्ट नहीं आता है, तो इसीलिए वो क्या, व्हाट इज द टिपिकली क्या होता है? मतलब अगर ऐसे कोई मिलता है तो कमेटी होती है, हर एक टूर्नामेंट में एक कमेटी बनाई जाती है, अगर कमेटी है तो उसको रेफर कर दिया जाए, प्लीज टेक डिसीजन। सो रेफरी विल ओनली, सो बेसिकली टू आंसर द क्वेश्चन, रेफरी विल ओनली ये वो कमेटी को रेफर करेगी, कमेटी विल टेक अ डिसीजन, इट इज नॉट द रेफरीज डायरेक्ट कॉल, नॉट ऑथराइज्ड एक्चुअली, रेफरी इज नॉट ऑथराइज्ड। सर एक क्वेश्चन है, सोनिया शर्मा पूछे कोई ऑफिशियल कोर्सेज है इसको ऑफिशिएटिंग को सीखने के लिए, अदर एनी ऑफिशियल कोर्सेज? दिस इटसेल्फ इज आल्सो ऑफिशियल थिंग, बट हर एक फेडरेशन की अपनी अपनी ऑफिशियल कोचेस लेवल 1 लेवल 2 इस तरह की होती हैं। आप अपने फेडरेशन को कांटेक्ट कीजिए और सभी के लिए अपनी अपनी लेवल 1 लेवल कोर्सेज होते हैं ऑफिशिएटिंग करने के।
राइट, सो बेसिकली वो अपने फेडरेशन को कांटेक्ट करे और फेडरेशन का रन कोर्सेज से आप उसको करें तो दैट इज बेटर। उनकी साइट चेक करते हैं ना, वो राइट, कोर्स सो आते आई हैं। थिंक दैट इज अ वेरी यूजफुल आंसर। सर एक क्वेश्चन आपने पूछा था अभी अभी किसने पूछा है कि जो आपने बताया कि फील्ड मूवमेंट है उसमें ऑन द ग्राउंड, फील्ड मूवमेंट का मतलब क्या है? कैन यू एक्सप्लेन दैट पॉइंट? समवन एक्चुअली शत्रुघ्न चैटर्जी है वेस्ट बंगाल से पूछा था कि रिदम नहीं, एंड फील्ड मूवमेंट का मतलब है जैसे अलग अलग गेम की ऑफिशिएटिंग करने के तरीके होते हैं। किसी जैसे बास्केटबॉल में है, एक इस टेल पे रहता है, दूसरा दूसरे टेल पे रहता है, तो किस तरह की मूवमेंट है और आपकी मूवमेंट कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे फुटबॉल में होती है कि वो एक रनिंग कर रहे होते हैं, तो वो किस तरह से उनकी मूवमेंट एरिया कितना है, उससे मेरा रिलेशन था कि फुल मूवमेंट अब क्या है। सर एक राइट सर एक क्वेश्चन है जो इसमें नहीं है बट ये इफ यू वांट टू शेयर कि इंटरनेशनल बहुत सारे विमेन भी है जो ऑफिशिएट करते हैं, सो द रोल ऑफ विमेन एंड हाउ दे कैन गेट इन्वॉल्वड इन ऑफिशिएटिंग, आई मीन सर ये क्या ये मेल डोमिनेटेड है और विमेन कैन आल्सो बिकम ऑफिशिएट? वेरी गुड क्वेश्चन एंड आप, मुझे नहीं पता लेकिन कि आप किस तरह से पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ हैं ढेर सारी वुमेन्स हैं जो कि कंधे से कंधा मिला के मेल को वो कर रही, डोमिनेट कर रही हैं और हर एक फील्ड में कर रही हैं। हाँ, मतलब कि जैसे मेल स्पोर्ट्स में विमेन स्पोर्ट्स में मेल होते हैं तो मेल इवेंट्स में भी विमेन होते हैं, सो दैट पार्टिसिपेशन चूंकि कम है इसलिए उनका नहीं है। अगर वो अच्छा कर रही हैं तो वो 100% मेल वाले कंडीशन में आ सकती हैं और बास्केटबॉल वगैरह में। right, okay. Yeah, Sanjay sir, Yes, these sir. are some of the questions that I had, so if you want to. Yeah. One more question is there. Is there any situation you saw that you have to stop the game because of the cruel behavior of the player? मैंने एक गेम देखा है हमारे यूनिवर्सिटीज गेम में, ऐसी कंडीशन है कि बहुत ज्यादा मिसबिहेव हो गया था दोनों टीमों के साथ, तो टूर्नामेंट को उस समय तुरंत कंपटीशन को रोका गया। लेकिन इज रेयर, बहुत रेयर होता है। और अधिकतर तो मैंने पहले बोला कि ऑफिशियल अगर अच्छे हैं और वो चालाक हैं, सिचुएशन को समझते हैं, सिचुएशन को भागते हैं, तो ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि ऐसी कंडीशन है। Another question: if an official made wrong decision and there was a conflict also, so can the official change the decision or he has to stick on that? अगर आपके पास अच्छा असिस्टेंट है, इफ यू हैव अ गुड असिस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू मे चेंज। अगर आपके पास अच्छा डिसीजन को ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैराडोना वाले कंडीशन में था, अगर उस समय ऑफिशियल को दिखाया जाता कि उनकी हैंड टच थी तो वो शायद गोल नहीं देते और अपने डिसीजन को वापस लेते हैं। क्रिकेट एक अच्छा एग्जांपल है जिसमें रेफरल आई है और उसमें क्या ऑफिशियल की ऊपर से थर्ड आई देखी जाती है और बाद में जो मेन एम्पायर है उनको वापस लेते हैं। तो लेना चाहिए, मैं इसमें कभी नहीं बोलता कि आपको नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप क्योंकि तुरंत क्विक डिसीजन लेते हैं तो आपके पास वैलिड रीजन होने चाहिए कि आपने डिसीजन क्यों लिए, आपके पास असिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है संजय सर। One very good question is there, sir. Referee or umpire, they both are involved in a game. Who will take the final decision? रेफरी। Okay, sir. What is the reason behind that? अगर हायरार्की देखें, मेरे गेम की देखिए आप क्रिकेट में, तो रेफरी को ऊपर रखा गया है, तो रेफरी जब उसको ऊपर रखा गया हायरार्की में कि रेफरी विल बी द फाइनल डिसीजन, देन रेफरी। एक्चुअली कोच का कोई रोल नहीं है उसमें, प्ले जब गेम चलता तो डायरेक्टली कोई रोल नहीं गेम है। खेलने में टीम को कोच असिस्ट कर सकता है, लेकिन गेम खिलाने में चूंकि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऑफिशियल आर द होल एंड सोल। Here the question is referee or umpire, not coach, sir. नहीं तो मैं तो बोल दिया ना रेफरी। अच्छा, रेफरी एंड अंपायर, ओके सर। Yeah. So shall we wind up, sir? Yes sir, I think Sir? Okay, so I invite Sujit sir to put his view on this lecture, please sir. सर इट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आई थिंक बहुत सारे लोगों का ये डाउट भी होता है कोच ऑफिशियल ये सब का, तो आई थिंक इट वाज वेरी सिंपली एक्सप्लेन्ड प्रेजेंटेशन। काफी लोगों ने लिखा हुआ है, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड आल्सो वेरी सिंपली एक्सप्लेन्ड। आई थिंक दैट इज व्हाट मैटर्स कि आप जो प्रेजेंटेशंस को आप कितने इजी तरीके से लोग उसको समझ पा रहे हैं, एंड आई थिंक इट वाज वेरी इजीली एक्सप्लेन्ड एंड पीपल आल्सो हैव अंडरस्टूड वेरी वेल।
And जो nuances है officiating का, so you have covered each and every aspect of that. And we saw some examples also, good examples also. And I think it has been extremely helpful for all the participants. So on behalf of all the participants, I would say that it has been an extremely well thought out and your presentation. And thank you, sir. Thank you, Panigiri, sir. Thank you, Sanjay. And once again, I want to express my sincere thanks to Sai LNCB Trivandrum, Ministry of Youth Affairs and Sports, Khelo India. Thank I you. also would like to express my thanks, sir. Your session was very wonderful and enlightening for the participants. I hope it has reached to the mind of the participants. So I would like to extend my heartfelt thanks to Thank you. on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Khelo India, and Lakshmi National College of Physical Education, sir. Thank you so much, sir. And I also would like to express my sincere thanks to Sujit Panigrahi, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir, everyone. Thank you, all the participants, because they have listened very patiently this session. So thank you, each and everyone. So for the participants, today we have session in evening, which will be taken by Alexander Silva. At 5 p.m. Okay. Participants, I request you to kindly join the session at 5 p.m. This is very informative. The topic is community coaching in football in Portugal. Because now the community coaching is extending like anything. This is the very vast term, and we have to use community coaching to develop the athletes so that we can reach, we will have more participation in Olympic. Thank you so much.